إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. میرے محترم بزرگ بھائیوں، عزیز دوستوں اور حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین پر چند لوگوں کو اس طرح بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور ان لوگوں کو کروڑوں اور اربوں خربوں کے بیچ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو منتخب فرمایا ہے اور ان کو انبیاء کے وارث کی حیثیت سے منتخب کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار خیر و برکت اور نعمتوں سے ان کو نوازا ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پرہیزگار، نیک اور سعادت مند بنایا ہے. اللہ نے ان کو مشرف اور مکرم بنایا ہے، یہاں تک کہ یہ لوگ اللہ کے اولیاء ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تعریف اپنی کتاب قرآن مجید میں کی ہے، اور ان کی صفت اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ اہل خشیت، یعنی ایسے لوگ ہیں جن کے اندر خوف خدا ہے، خشیت ہے، خشوع اور خضوع ہے. ان صفتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے نوازا ہے. قرآن مجید میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. بے شک اللہ تبارک و تعالی سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اور خشیت اور خوف کے حامل وہ علماء ہیں. فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اور کیوں نہ ہو، یہی وہ علماء ہیں جو اندھیروں میں چراغ کے مانند ہیں، جن سے لوگ رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور ان کی اقتداء کرتے ہیں. کتنے ایسے طالب علم ہیں جن کو ان لوگوں نے سکھایا ہے، کتنے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جن کی رہنمائی ان لوگوں نے کی ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو شرک و بدعت میں مبتلا تھے، شک و شبہ میں مبتلا تھے، لیکن انہی علماء نے ان کے اندر بصیرت پیدا کی ہے، ان کو سکھایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان علماء کے مقام اور مرتبہ کو دنیا اور آخرت دونوں میں بڑھایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. کہ جو لوگ
اہل ایمان ہیں اور جن لوگوں کے پاس علم ہے ان کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند فرمایا ہے۔ وَيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اللہ نے ان کے درجات کو بلند کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستوں، اور کیوں نہ ان کے درجات بلند ہو، جبکہ یہ لوگ وہ کام کرتے ہیں جن کاموں کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے۔ نبیوں کی قائم مقام یہ علماء ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف بلانے والے اور دین کی تبلیغ کرنے والے نبی کے بعد یہی علماء ہیں۔ اسی لیے ان کے مقام اور مرتبہ کو اللہ نے اتنا بڑھایا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستوں، یہی وہ علماء ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ اس روئے زمین پر تمام مخلوقوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں، اور ان مخلوقات کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے سب سے زیادہ خیرخواہ اگر کوئی جماعت ہے تو وہ علماء کی جماعت ہے۔ اور اسی مقام اور مرتبہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے ہمارے اوپر، آپ کے اوپر یہ واجب قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہمیں جب کبھی کوئی شک و شبہ پیدا ہو، جب ہمیں کوئی سوال ہے ہمارے پاس، تو ہم علماء کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ تمہارے پاس اگر علم نہیں ہے تو تم اہل علموں سے پوچھا کرو۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستوں، کیوں کہا گیا پوچھنے کے لیے؟ اس لیے کہ وہ دونوں وحیوں کے علم رکھنے والے، یعنی قرآن اور حدیث دونوں کے علم رکھنے والی یہ علماء ہیں۔ اسی لیے یہ لوگ کتاب و سنت کے بارے میں زیادہ سمجھتے ہیں، زیادہ فہم اور زیادہ عقل رکھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ فرمایا، کہا کہ یہ علماء ہیں جو سب سے زیادہ عقل رکھنے والے ہیں، سب سے زیادہ سمجھ رکھنے والے اس روئے زمین پر علماء ہیں۔ اسی لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے مسئلہ پوچھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسئلہ پوچھنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے علماء کا وجود، علماء ربانیین کا وجود اس روئے زمین پر اللہ کی نعمت اور رحمت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ان کا مرنا اور اس روئے زمین پر سے ان کا رخصت ہو جانا یہ عذاب اور مصیبت ہے۔ میرے بھائیوں، اتنی فضیلت اور اتنا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ تبارک و تعالی علم کو ان اللہ لا يقبض العلم ان اللہ لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من العباد، کہا کہ اللہ تبارک و تعالی علم کو نہیں اس طرح کھینچے گا یا اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ گویا کہ اس کے دلوں سے ان کو کھینچے گا، بلکہ فرمایا کہ ان اللہ یقبض العلم بقبض العلماء، کہ اللہ تبارک و تعالی اس علم کو علماء کو رخصت کر کے اس علم کو اٹھائے گا۔ گویا کہ علماء کی موت ایک مصیبت ہے، ایک عذاب ہے، اور
ایک परेशानी है। मेरे भाइयों, मेरे अजीज, मेरे दोस्तों, हदीस इस तरह है कि इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्मा यंतज़िहु यंतज़िहु इंतिज़ाअन यंतज़िहु मिनल इबादी व इन्नमा यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, कि अल्लाह तबारक व तआला इल्म को इस तरह नहीं खींचेगा गोया कि वो बंदों के दिलों से खींचता है, वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इल्म को कैसे उठाएगा? उलमा को रुखसत करके उठाएगा। हत्ता इज़ा लम युब्क़ि आलिमन, यहां तक कि किसी आलिम को इस रुए जमीन पर नहीं छोड़ेगा, खत्म कर देगा अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के करीब। और उसके बाद क्या होगा? इत्तख़ज़न नासु रूसन जुहालन, तो लोग जब आलिम नहीं रहेंगे तो जाहिल लोगों को अपना इमाम बना लेंगे, अपने रईस बना लेंगे, अपने कायद और अपने इमाम बना लेंगे, जाहिल लोगों की फरमाबरदारी करेंगे। फसुइलू, तो जाहिलों से पूछा जाएगा, दीन के मसले मसाइल के बारे में जाहिलों से पूछा जाएगा। फ़अफ़्तू बग़ैर इल्मिन, तो ये जाहिल लोग फिर फतवाबाजी शुरू कर देंगे और बगैर इल्म के ये लोग फतवा देंगे। फ़ज़ल्लू अज़ल्लू, तो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। मुत्तफ़क़ुन अलैह, ये हदीस सही मुस्लिम और सही बुखारी दोनों के अंदर मौजूद है। मेरे भाइयों, मेरे अजीज, मेरे दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आलिम का वजूद इस दुनिया में अल्लाह की रहमत है। इसलिए किसी भी इंसान को अगर किसी भी मसले में अगर कोई जरूरत पेश आती है तो आदमी आलिम से जाकर के पूछना चाहिए। और खास तौर पर इस फितने के जमाने में जहां पर ज़िनाकारी है, जहां पर शराबखोरी है, जहां पर झगड़ा लड़ाई है, जहां पर बिदात व खुराफात है, जहां पर फिरकतबंदी है, तरह तरह की फितने इस रुए जमीन में अभी रूनमा हो रहे हैं। और इस दौर में खास तौर पर हमें हर एक मसले में अहले इल्म और उलमा की तरफ रुजू करना चाहिए। बहुत अफसोस की बात है कि आदमी के पास जब कोई मसला पैदा होता है फितना के वक्त, बजाय इसके कोई आलिम के पास जाकर के पूछें, जाहिलों से जाकर के पूछते हैं, ऐसे ऐसे लीडरान के पास जाते हैं जो सुबह शाम शराब पीते हैं, जो हरामखोरी और शराबखोरी करते हैं, जिसका पेशा ही झूठ बोलना है, जिसका पेशा ही धोखा देना है, उनके पास जाकर के अपने घर के मसाइल को बयान करता है, अपने मसाइल उनसे दरियाफ्त करता है और उनसे रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से वो भटकते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे अजीज, मेरे दोस्तों, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक मसले में हमें आलिम की तरफ रुजू करने का हुक्म दिया है, इसी तरह हमें चाहिए कि हम अपने आलिमों को भी पहचाने कि कौन उलमा जो रब्बानीयीन हैं, जो सही किताब व सुन्नत की दावत देते हैं। और लिबासों पोशाक से कोई आलिम नहीं बन जाता, लंबे कुर्ते लगा करके या लंबी पगड़ी लगा करके कोई आलिम नहीं बनता। आलिम कुरान और सुन्नत को पढ़कर और उस पर अमल करके आलिम बनता है। इस बात को याद रखें। इसलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा रो रहे थे, बहुत ज़ारो कतार रो रहे थे। तो इमाम मालिक से पूछा गया कि क्या हो गया है कि हलिल मुसीबत तंजिलु बिकुम, क्या इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, क्या आपके ऊपर कोई मुसीबत नाजिल हुई है? आप क्यों इस तरह ज़ारो कतार रो रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि आज ऐसे लोगों से फतवा पूछा जाता है जिनके पास इल्म ही नहीं है। मैं इस बात पर रो रहा हूं। जाहिलों से कुरान हदीस का मसला पूछा जाता है और फिर उसके बाद वो उसका जवाब देते हैं और खुद भी भटकते हैं और दूसरों को भी भटकाते हैं। मेरे भाइयों, मेरे अजीज, मेरे दोस्तों, उलमा का वजूद
इस जमाने में, जैसा कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वजूदुल उलमा बैनन नास निअमतुन व रहमा, उलमा का वजूद इस रूए जमीन पर अल्लाह की नेमत और रहमत है। लिअन हाजतन नास अलैहिम हाजतुन अज़ीमा, इसलिए कि लोगों को उलमा की जरूरत निहायत ही नागुजीर है। और उसके बाद इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल उलमा फहुम फिल अर्ज़ बिमंज़िलतिन नुजूम फिस समा, कि उलमा इस रूए जमीन में उनकी मिसाल सितारों की तरह है आसमान में, जिस तरह आसमान के सितारों से। उसके बाद उन्होंने फरमाया कि यहतदी बिहिल हैरान फिज़ ज़लमा व हाजतुन नास इलैहिम आज़म मिन हाजतिहिम मिनत ताम व शराब। इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उलमा का वजूद इस रूए जमीन पर आसमान में सितारों के मानिंद है, जिन सितारों के जरिए एक भटका हुआ इंसान रात की तारीकी में हिदायत पाता है, रहनुमाई हासिल करता है, रास्ता उनको मिल जाता है। और फरमाया कि लोगों को उलमा की जरूरत ज्यादा है उस जरूरत से, यानी खाने और पीने की जरूरत से ज्यादा उलमा की हाजत और जरूरत ज्यादा है। फरमाया कि एक आदमी, वो कैसे, तो कहा कि एक आदमी खाने और पीने का मोहताज कितनी मर्तबा होता है दिन में, खाने और पीने का मोहताज या खाने और पीने की जरूरत कितनी बार होती है? ज्यादा से ज्यादा 2 बार या 3 बार, ज्यादा से ज्यादा खाने पीने की जरूरत 24 घंटे में 2 या 3 मर्तबा होती है। लेकिन एक इंसान, एक सेहतमंद इंसान की जरूरत एक आलिम की कितनी बार होती है पता है? आपके जिस्म में सांस और धड़कन जितनी बार चलती है उतनी बार आप उलमा के मोहताज है, क्योंकि उलमा के पास वो इल्म है जिस इल्म की बुनियाद पर आप जन्नत हासिल कर सकते हैं, जिनके जरिए से आप दुनिया और आखिरत बना सकते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे अजीज, मेरे दोस्तों, उलमा की कद्र को पहचाने, उनकी इज्जत को पहचाने। और इसी तरह खास तौर पर इसकी जरूरत उस वक्त ज्यादा हो जाती है जिस वक्त फितना हो, फितना का दौर हो, शिर्क व बिदात का दौर हो, लड़ाई झगड़े का दौर हो, और क्या कहते हैं बेशुमार मासी और गुनाहों का दौर हो, तो उस वक्त उसका जो है उसकी अहमियत और बढ़ जाती है। इसीलिए इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाते हैं कि वो ताज़ुमुल हाजतु इलल उलमा इंदल फितन अल्लती तनज़िलु बिल मुस्लिमीन फल फितनतु इज़ा अक़बलत अरफ़हा कुल्लु आलिमिन व इज़ा अदबरत अरफ़हा कुल्लु जाहिलिन। फरमाया कि उलमा की जरूरत उस वक्त ज्यादा बढ़ जाती है जब फितना का दौर हो, जब मुसलमानों पर फितना नाजिल हो। कहा कि जब, इसलिए कि फितना के वक्त आलिम को पता होता है कि उस वक्त क्या करना चाहिए, कौन सी चीज हलाल है, कौन सी चीज हराम है, और क्या करना चाहिए, ये कुरान और सुन्नत में बताया गया है। ये अहले इल्म के पास इनकी जो है जानकारी ज्यादा है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे अजीज, मेरे दोस्तों, उलमा की जरूरत आप महसूस करें, और साथ साथ में आप जानते हैं कि उलमा की जरूरत कभी खत्म नहीं हो सकती। जब आप सुबह करते हैं और जब आपकी आंख खुलती है उस वक्त आप आलिम के मोहताज हैं। कौन सी दुआ पढ़ करके आप उठेंगे, उठने के वक्त कौन सी दुआ पढ़ेंगे, दुआ पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, वजू करना है, वजू आप कैसे करेंगे, नमाज किस तरह पढ़ेंगे, और नमाज पढ़ने के बाद सुबह शाम के अज़कार क्या पढ़ेंगे, हर एक चीज आप एक आलिम के मोहताज हैं। हर एक चीज के अंदर एक आलिम के मोहताज है। लेकिन साथ साथ ये समझ लें, अगर आप आलिम के मोहताज नहीं है, आप समझते हैं कि हमें कोई जरूरत नहीं है,
तो फिर आप आलिम बने, इल्म हासिल करें, या तो खुद इल्म हासिल करें, और अगर इल्म हासिल नहीं करते हैं तो आप आलिम के मोहताज हैं। और मैं चाहता हूं कि हर शख्स इल्म हासिल करे, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा। हर मुसलमान मर्द और हर मुसलमान औरत के ऊपर इल्म हासिल करना वाजिब है। मिसाल के तौर पर किसी चीज की आप जरूरत महसूस करते हैं, मिसाल के तौर पर गाड़ी की जरूरत महसूस करते हैं, तो आप अपने पड़ोसी से एक दिन गाड़ी मांगेंगे, दूसरे दिन मांगेंगे, तीसरे दिन मांगेंगे, लेकिन बराबर तो नहीं मांग सकते। आपके दिमाग में ये बात आएगी कि चलो हम गाड़ी खुद खरीद लेते हैं। बिल्कुल हर आदमी चाहता है कि हर आदमी चाहता है कि हर घर में उनके पास एक गाड़ी हो, एक सवारी हो, ताकि उसकी जरूरत पूरी हो और किसी से जो है मांगना ना पड़े। मेरे भाइयों, ये इल्म जो क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल का इल्म है, कुरान और सुन्नत का इल्म है, ये तो हमेशा हर वक्त इंसान उसका मोहताज होता है। इसलिए हर आदमी को चाहिए कि जिस तरह जरूरत पूरी करने के लिए हर आदमी के घर एक गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी नहीं है तो कम से कम मोटरसाइकिल होनी चाहिए, मोटरसाइकिल नहीं तो कम से कम साइकिल होनी चाहिए। हर आदमी को चाहिए कि अपने घर में एक आलिम रखे जो उनको हलाल और हराम के बारे में उनको बताए, नमाज के तरीका बताए, और उनको पर्दे के बारे में उनको बताए, किसके अंदर सआदतमंदी है और किसमें शकावत है, इन चीजों के बारे में एक आलिम बताए। इसलिए हर घर में एक आलिम होना जरूरी है, बल्कि हर शख्स के पास एक इतना इल्म हो कि वो अल्लाह के हुकूक को अदा कर सके। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें किताबुल्लाह और सही सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।